ان میں سب سے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 سال پہلے کا زمانہ تھا۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے دور ہو کر کفر و شرک میں جا چکے تھے، کفر و شرک کی گمراہی میں ڈوب چکے تھے، خانہ کعبہ کا طواف برہنہ کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں کسی عورت کے ہاں کوئی لڑکا یا لڑکی تولد ہوتی تھی، ولادت ہوتی تھی، تو اس گھر پر کئی ایک مرد پہنچتے تھے اور وہ عورت، سچا عورت جس مرد کے سر پر ہاتھ رکھا کرتی تھی، وہ بچہ اسی کا قرار دے دیا جاتا تھا۔ ایسی جاہلیت، ایسی درندگی کا دور جہاں پر خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، روزانہ کا ایک ایک بت ہوا کرتا تھا۔ اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ ایک ہے، اللہ کو تو مانتے تھے اللہ ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے۔ اللہ کے علاوہ 360 بتوں کو بھی اس کا شریک قرار دیتے تھے۔ روزانہ کا ایک ایک بت ہوا کرتا تھا، تو 360 بتوں کی پرستش ہوا کرتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کو، جتنے بھی رسولوں کو بھیجا، یہی مقصد تھا کہ اس شرک کو لوگوں سے نکالا جائے، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف لایا جائے، ساری انسانیت کو شرک اور کفر سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک ایک اللہ کی طرف لایا جائے۔ سارے لوگ کفر و شرک میں ڈوب چکے تھے۔ ایسے وقت 571 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ جب 40 سال کی عمر کے ہوئے تو آپ کو پیغمبری سے نوازا گیا، آپ کو پیغمبری کا تاج آخری نبی کے طور پر پہنایا گیا اور آپ کو اعلان کرنے کا حکم دیا گیا۔ غار حرا پر آپ پانی اور ستو لے جا کر بیٹھ کر عبادت فرمایا کرتے تھے۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو وہاں پر جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 6 آیتیں وہاں پر نازل ہوئی۔ آپ کو اس نبوت کا تاج پہنانے سے پہلے آپ کو، آپ کے قلب اطہر کو، آپ کے دل مبارک کو زمزم کے پانی سے غسل دیا گیا، سینے مبارک کو چیر کر دل مبارک کو دھویا گیا اور اس میں سے غلیظ خون کو نکال کر علم و حکمت کی، ایمان کی باتیں، حکمت و دانائی کی باتوں کو اس میں بھرا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں تھا۔ اگر آپ کا کوئی استاد ہوتا تو آپ کے اوپر ایک حرف، ایک عیب آ گیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آپ کو پڑھایا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو آپ پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش، جب ہوش آیا، ہلکا پھلکا ہوش آیا تو جیسے تیسے کر کے اپنی بیوی خدیجہ کے پاس پہنچا اور بیوی سے کہا کہ اے بیوی مجھے چادر اڑا دو۔ تب چادر اوڑھ کر سو گئے۔ آپ کو بخار تیز ہو گیا تھا، آپ کو ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ جیسے ہی چادر اوڑھ کر سو گئے، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، اے چادر کے اوڑھنے والے اٹھو، قم فانذر، جاؤ لوگوں کو ڈراؤ، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو، والرجز فاہجر، یہ دنیا کی جو گندگی، شرک و کفر سے دور رہو، ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اور اب یہ کافر لوگ جو بھی تکلیف دینے والے ہیں، قیامت تک جو تکلیفیں مومنین کو آنے والی ہیں، اس پر صبر کرو، ولربک فاصبر۔ فاذا نقر فی الناقور، جب تک، اس وقت تک صبر کرو جب تک کہ سور پھونک نہیں دیا جاتا، قیامت واقع نہیں ہو جاتی۔ علی الکافرین غیر یسیر، وہ دن جو ہے بہت سخت ترین دن ہوگا، لیکن کافروں کے لیے بہت ہی سخت ترین دن ہوگا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم دیا گیا تو آپ گئے، صفا نامی پہاڑی پر چڑھے، جہاں پر ایک پاران نام کی ایک چوٹی ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر سارے مکے کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک ایک صادق الامین کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ آپ کے اتنا سچا مکے کے لوگوں نے، مکے کے باشندوں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا تھا، اور آپ کے اتنا قاضی، فیصلہ کرنے والے، جو بھی آپ فیصلہ دیتے تھے، جو بھی کس سے قضیے جھگڑے ہوتے تھے، جاتے تھے چلو محمد کے پاس جا کے ہم حل کر لیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، آپ امانتوں کو رکھ کر دیا کرتے تھے، لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس جمع ہوتی تھی، جمع رہتی تھی۔ تو پیارے نبی صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे सच्चे और सादिकुल अमीन ने लोगों से ये पहाड़ी के दामन में खड़ा करके मक्के के बाशिंदों से कहा, ऐ लोगों, तुम तो मुझे सच्चा जानते हो, सच्चा करार देते हो, इन्हें मेरी हर बात को तुम तस्लीम करते हो। अगर मैं तुम्हें ऐसी खबर दूं कि एक लश्कर है जो पहाड़ के उस दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं, एक लश्कर है जो तुम्हारे ऊपर आकर हमला करना चाहता है, क्या तुम मेरी इस बात का यकीन कर लोगे? तो सब ने कहा कि ऐ मोहम्मद, हम आपकी हर बात उस बात का यकीन करेंगे, जो भी आप जिसकी भी खबर देंगे हम जरूर यकीन करेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही ये यकीन अहद ले लिया, ये अहद पैमान ले लिया, इन्हें यकीन उनकी बातों में से यकीन होने लगा, उन्होंने मान लिया, तो दोबारा आपने ये फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो सब ने कहा, अबू जहल ने कहा, मोहम्मद के उतना झूठा कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐलान कर दिया, नऊज़ बिल्लाह, इन्हें झूठा करार दे दिया, पागल करार दे दिया, यानी शायर और जादूगर करार दे दिया, इन्हें मजनू करार दे दिया। और लोगों ने जब ये ऐलान हो गया तो तरह तरह की तकलीफें देनी शुरू की काफिरों ने। इन्हें आपने साल के 52 खुतबों में और किताबों में, किस्से कहानियों की किताबों में, कुरान और हदीस में आपने सारे किस्से पढ़े हैं कि मोमिनीन को कैसी कैसी ईज़ाएं और तकलीफें दी गई। आपने बहुत सुना है हज़रत बिलाल को कैसे घसीटा जाता था, इन्हें कैसे उनके ऊपर अवकाश लड़कों को पीछे लगा दिया जाता था, उनको रस्सियों से बांधकर गर्म बालू में खींचा जाता था, ऊपर से चट्टाने गरम गरम पत्थर लाकर रख दिए जाते थे, नमाज पढ़ने वालों पर लाके गंदगी का ढेर वगैरह लाकर डाल दिया करते थे, रास्ते में कांटे बिछाया करते थे। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके सहाबा किराम ने हर तरह की ईज़ा को, हर तकलीफ को सहा, हर तकलीफ को बर्दाश्त किया। जब इससे बाज नहीं आए तो आपको और आपके मानने वालों को ये कार के अंदर तकरीबन 3 साल के लिए बंद कर दिया। अगर हम में से किसी को कोई अपने बेडरूम का दरवाजा बाहर से अगर 3 मिनट के लिए भी अगर कोई बंद कर ले तो घर में उस दिन किसी की खैर नहीं। यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे 3 बरस ये दार के अंदर काफिरों ने बंद कर दिया। उनका जुर्म क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसकी सजा उन्हें ये दी गई, बच्चे बिलक बिलक कर रोते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मानने वाले जो बच्चे, जो औरतें, इन्हें वहां पर खजूर के पत्तियों को चबाकर खाया करते थे, चमड़े के टुकड़ों को पानी में भिगोकर, कहीं से पानी मुयस्सर आ गया तो उस पानी को, उस चमड़े के टुकड़ों को भिगोकर उसका रस चूसा करते थे। यहाँ ताजा फ्रूट में ही जूस का रस का आना मुश्किल है, भला कहीं चमड़े के टुकड़ों में भी जूस आता है। तो पूरे 3 बरस 36 महीने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कार के अंदर बंद रहे। वजह क्या थी? कुफ्र और शिर्क को दुनिया से निकालने के लिए, खाने काबा से 360 बुतों को हटाने के लिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इससे भी बाज नहीं आए तो आखिरकार इन काफिरों ने क्या किया? आपके कत्ल का मंसूबा बनाया। सारे काफिर लोग मक्के मुकर्रमा में जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहां पर मकान है, आज भी जो मकान है, उस मकान के बाहर खड़े हो गए। हर एक के पास हर किस्म का हथियार था, हर किस्म के हथियारों से लेस होकर किसी के हाथ में जो औजार मुयस्सर आया वो लेकर खड़े हो गए। रात के अंधेरे में ये मोहम्मद नमाज के लिए बाहर निकलेंगे, हम उनका काम तमाम कर देंगे। नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए खबर दे दी। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अली रजी अल्लाह ताला थे। हजरत अली के हवाले वो अमानतें जो मक्के के लोग रखा करते थे, जो भी उनके अमानतें थी, पैसे, जेवर वगैरह जो कुछ था, वो सब हजरत अली के हवाले की। अली हमारे जाने के बाद ये फलां फलां की अमानत फलां को हवाले कर देना। दरवाजा खोला, देखा रात के अंधेरे में काफिरों का हुजूम खड़ा हुआ है। उस हुजूम को चीरते हुए ये सूरह यासीन की तिलावत है। वजअलना मिन बैनिहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। एक मुट्ठी पर मिट्टी जमीन से उठाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान में उछाल दी। मजमे को चीरते हुए निकल गए। जब काफी दूर चले गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर पहुंचे। पहले से इस प्लान तय था, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बता दिया था कि अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सकीना यहाँ पर तंग हो गए है, बराए करम आप मक्का छोड़कर मदीना चले जाए, हिजरत कर जाए। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक को लिए साथ लेकर गारे सौर, तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर की चढ़ाई है। उस चढ़ाई के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़ने के लिए जा रहे थे, तो आपको चढ़ने नहीं हो रहा था वहां पर ऊपर। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने कंधों पर बैठा लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 पर 3 साल के थे और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु 55 साल की उम्र के थे। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस
फरमाते हैं ये अमल जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हिस्से में आया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिन कंधों पर बैठकर जो शख्सियत जा रही है, ये अमल मेरे एक दिन के अमाल के बराबर, यानी इतना बड़ा अमल था, यानी हर कोई एजाज चाहता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई खिदमत हमारे हिस्से में आ जाए। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन 3 रात उस गार में छुपे रहे, 3 दिन 3 रात, जहां पर कबूतर ने अंडे दे दिए, मकड़ी ने जाला तान दिया। वही यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पहुंच गए, गार के अंदर चले गए, तो उस गार के मुंह पर मकड़ी ने जाला तान दिया, कबूतर ने अंडे दे दिए। वहां पर एक सांप जो ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार के लिए सांप मुंतजिर था, उस सांप ने आकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को काट लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाना चाहते थे, उस गार को पाक साफ किया। पाक साफ करने के बाद उस दो सूरत से जो बंद होने से रह गए थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने दानों पर लिटा लिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, एक पैर लंबा करके उस पैर से पाँव के अंगूठे से कुंडली से 2 सुराखों को बंद कर दिया, ताकि कोई मोदी जानवर आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान न पहुंचा दे। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आराम फरमा रहे थे, उस मुंह को बंद कर दिया था, उस सुराख को बंद कर दिया था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने पाँव से, तो एक सांप ने गले ने आकर डस लिया। उस सांप का काटना इतना शदीद था कि पैर हिलाएंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में खलल आ जाएगा। पैर तो ही नहीं हिलाया, आंखों से शदीद आंसू निकले और आंसू के खतरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गाले मुबारक पर गिरे। तो रसूलुल्लाह सब बेदार हुए, पूछा क्या मामला है, क्या माजरा है। सांप ने काट लिया, फौरन अपना दुआ में जहन उनके मुबारक निकाला, उसको लगा दिया, जख्म फौरन मुंतबिल हो गया। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने मुनव्वरा रवाना हो गए। रवाना होने के 6 साल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि वो मक्के आकर एहराम बांधकर उम्रा कर रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं। इस बात का जिक्र सहाबा किराम के सामने जिक्र हुआ। सहाबा किराम 1400 की तादाद में 1400 सहाबा किराम के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 हिजरी में 6 साल के बाद मदीने मुनव्वरा से 450 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए यहाँ पर तशरीफ लाए, यहाँ पर पड़ाव डाला। काफिरों का 30 आदमियों का एक हुजूम आया, एक काफिला आकर आपको रोक दिया कि आप दाखिल नहीं हो सकते। तो उन 30 अपराध को सहाबा किराम ने गिरफ्तार कर लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश कर दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको छोड़ दिया, माफ कर दिया। फिर 80 अपराध दोबारा आकर वो उन्होंने भी रोका, तो उनको भी सहाबा किराम जो 1400 की तादाद में थे गिरफ्तार कर दिया। तो तकरीबन 1400 सहाबा किराम इतनी ताकत और कुव्वत में होने के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी जो बैठी हुई थी वो उठकर मक्के की तरफ जाने के लिए बढ़ नहीं रही। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का हुक्म इस ऊंटनी को नहीं है, हम उम्रा नहीं करेंगे, हम वापस चलेंगे। काफिरों की भी ख्वाहिश है, काफिरों की भी हट धर्मी और जिद है कि हम उम्रा ना करें। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही ये हुक्म दिया, सहाबा किराम जो आपके वुजू के पानी को जमीन पर गिरने नहीं देते थे, आपके थूके मुबारक को उठाकर अपने चेहरों पर मल लेते थे, जिसमें मुश्क अंबर की खुशबू आती थी, ऐसे सहाबा किराम आपके एक इशारे पर मर मिटने के लिए तैयार रहते थे। आज आपके हुक्म को टाल रहे। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ मुसालहत कीजिए, कुछ मन्नत समादत कीजिए काफिरों से कि हम 2 घंटे के लिए जाएंगे, अल्लाह के घर की दीदार करेंगे, तवाफ करेंगे, उम्रा करेंगे, निकल जाएंगे। इस काम के लिए इन्हें काफिरों ने कह दिया था कि अगर आप दाखिल होंगे तो खून खराबा हो जाएगा। ये जो अल्टीमेटम दे दिया था, ये अल्टीमेटम के पेश नजर उठने के लिए तैयार नहीं और सहाबा किराम मानने के लिए तैयार नहीं। इस काम के लिए हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा। कहां? हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के बहुत बड़े एहसानात थे मक्के के काफिरों के ऊपर, बहुत बड़े मालदार अमीर तरीन आदमी थे, ताकि ये बड़ा आदमी है, किसी मुसालहत के लिए भेजेंगे तो मान लेंगे, शायद के मान जाए। जब हजरत उस्मान गए तो यहाँ पर खबर फैल गई कि हजरत उस्मान शहीद कर दिए गए। जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली, आपने अपने सीधे हाथ को अपना हाथ करार दिया और अपने बाएं हाथ को हजरत उस्मान का हाथ करार दिया और हाथ के ऊपर हाथ रख के सहाबा किराम ने बैत की। इसको बैअतुर रिज़वान भी कहते हैं, इस मकाम को बैअतुर रिज़वान भी कहते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरि सुजूद। काफिरों के लिए सख्त, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी किसको कहते हैं? वो मर्द जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा, सहाबिया वो औरत जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा, उस
16, 17, 18 पीढ़ियां गुजर गई, इन्हें दिन ब दिन ईमान में कटौती होती जा रही। ईमान का जो मेयार है, ईमान की जो क्वालिटी है, दिन ब दिन कम होती जा रही। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह की मदद क्या है कि हम अल्लाह को अल्लाह माने, अल्लाह वहदहू ला शरीक माने, तौहीद को गले लगा लें, शिर्क को, कुफ्र को अपनी जिंदगियों से निकाल कर फेंक दे। तौहीद का अपोजिट क्या है बोलिए? शिर्क। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजस, ऐ ईमान वालों, मुशरिक कौन? मुशरिक जो अल्लाह की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। अल्लाह की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना किसको कहते हैं? गैरुल्लाह को सजदा करने वाला, अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करने वाला, अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगने वाला, अल्लाह के अलावा किसी और से हाथ उठाकर मांगने वाला, ये सब मुशरिकीन में आते हैं। इन्हें काफिर लोग उस जमाने के अल्लाह को भी मानते थे, अल्लाह के साथ 2560 बुतों को भी मानते थे। आज जरूरत किस बात की है बोलिए? हम इसलिए यहाँ पर आए हुए। उस जमाने तक काफिर लोग मक्के में मुसलमानों का दाखिला रोके हुए थे। 9 हिजरी तक प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से जैसे ही हुक्म हुआ, अल्लाह का हुक्म क्या हुआ? उठने के लिए तैयार नहीं, जाने के लिए तैयार नहीं। बाद में सुनिए, हजरत उस्मान वापस आ गए, सही सलामत वापस आ गए, शहीद नहीं हुए। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तय किया कि ऐ सहाबा चलो अगले साल आकर हम उम्रा करेंगे। काफिरों से यही बात रखी, काफिरों से बहुत मन्नत समाजत की। जब उन्होंने नहीं माना तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम अगले साल आकर उम्रा करेंगे। काफिरों ने भी यही बात कही कि आप उम्रा करना ही है आपको, तो अगले साल आइए। अगर आप इस साल कोशिश करेंगे दाखिल होने की तो खून खराब हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खून खराबा नहीं चाहते थे। जब ये कामयाबी इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हालात ऐसे बिगड़ गए हैं, बिल्कुल मुखालिफ हवा चल रही है, तो जाने का कोई फायदा नहीं है। तो काफिरों से कहा कि हम बैठ के अग्रीमेंट कर लेते हैं, हम अगले साल अमन और सुकून के साथ आगे उम्रा करेंगे। तो उसको लिखा पढ़ी कर लिया। अग्रीमेंट के गोल क्या थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस अग्रीमेंट के लिखने वाले हजरत अली थे। काफिरों ने कहा कि हम अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह अर्रहमान है, अर्रहीम है, हम नहीं मानते। वो तो हमारे बुत है, हमारे बुत है जो रहमान है, रहीम है। यही तो शिर्क है। फिर अर्रहमान और रहीम को कटवाया गया, काटा गया। हजरत अली ने, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया बिस्मिल्लाह लिखो से। फिर अगला लिखा फर्स्ट पार्टनर, सेकेंड पार्टनर, मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा गया। तो काफिरों ने कहा रसूलुल्लाह मान लेते हैं तो सारा झगड़ा ही खत्म है। ये भी हम नहीं मानते। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को जानते हैं, हम मोहम्मद सन्ना अब्दुल्लाह को जानते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं जानते। तो हजरत अली से कहा कि उसको भी काटो, रसूलुल्लाह को हटाओ। तो हजरत अली ने कहा मेरा हाथ दर्द रहा है, हाथ में जुम्बिश है, मैं काट नहीं सकता। तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कलम को अपने दस्ते मुबारक से लिया, अपने हाथों से काटा, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखा गया। तीसरा पॉइंट था, हमारा कोई आदमी इस्लाम कबूल करके मक्का चला जाए, मदीना चला जाए, तो आप उसको